I'm Sauryansh Pratap Singh, sir. I recently got recommended for 147 NDA from 4AFSB Banaras, sir. I belong to Bulandshahr, sir, from UP. And my father is in Air Force and my mom is in the glamour field. So now I have finally settled down. So I'm very happy and very excited for the future. Okay. I did my schooling from DPS, sir, 11th, 12th. And I did my 10th from KV Mysore. Okay. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। और व्हाट ऑल हॉबीज यू हैव? अरे सर, hobbies. I love coding, sir. Coding is one of my very beloved kind of hobby, and I'm a boxer, sir. I love boxing, kickboxing, martial arts. All my hobbies. Love sports in Great. general. Once you go to academy ना, you will have fun. All boxers in academy they usually have fun because वहाँ पे boxers are like kings. Plus तू first term में जाएगा और वो भी public school का background है, तो you will have good time. Plus अगर you are into a squad like India squadron और Bravo और Hunter जिनका boxing tradition है, तो you Yes, will be sir. like 6th there if you win a medal. So good, yeah. All the I'll try, best sir. for the future. And what all Thank you, sir. sports do you play apart from boxing? Sir, my main sport is martial arts, sir. And Okay. I play a lot of basketball also. Okay, boxing, basketball. Okay, great. So ये कोडिंग की हॉबी कहाँ से डेवलप की? स्कूल में was it one of your subject or just like that Yes, sir. someone It was one of my introduced? subjects. Okay. हाँ, it was one of my subjects. Computer में we had Python. Okay. And धीरे धीरे Python से I started developing this habit of researching about codes and stuff. उसके बाद धीरे धीरे it started, and now finally it has come to a point where I मतलब try and code huge softwares and stuff. I try. ऐसी है, just a hobby. Okay, okay. Good, yeah. And so any app or any web page or any kind of small game you have developed which can be interesting for us? Several, sir. Just as a normal stuff. I was actually practicing coding because I wanted to pursue cybersecurity when I was in 10th. Forge was always the back of my mind. But at that point, I thought कि this is a growing field, cybersecurity, and one of my cousins is really into cybersecurity, so he's the one that put the कीड़ा inside me. So से धीरे धीरे I started doing that. Good, यार, amazing. गुड यार, ये काफी यूनिक हॉबी है। तो तूने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी यही बोला था कि सर आई एम अ कोडर? सर फंस गया था सर, मैंने बोल दिया, एंड मेरे को पता नहीं था कि सर ऑलरेडी मतलब सर भी इज अ वेल वर्स्ड कोडर। बीटेक होगा उसके पास भी। सर मेरा ऐसा लग रहा था आईटी जॉब की इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। सर मेरे को पूछे जा रहे हैं पाइथन के बारे। देन फाइनली आई हैड टू से कि सर माफ कर दो सर, नहीं पसंद मेरे को, छोड़ दो सर। तो फिर क्या बोलता हो? नहीं, फिर देन ही अंडरस्टूड सर। ओके, गुड। इतना तो वेरी एक्सटेंसिव हो जाएगा। गुड यार। सो सर, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन एकेडमी? फर्स्ट डे वाज वेरी मैजिकल। आई वाज अ लिटिल नर्वस, एंजाइटी भी थी और स्केर्ड भी था मैं, तो क्योंकि माय डैड वाज फ्रॉम इंडिया स्क्वाड्रन एंड बचपन से ये सुन रहा था कि इंडिया स्क्वाड्रन ये, इंडिया स्क्वाड्रन वो है। तो जब खुद से जाने का मौका मिला वहाँ पे, तो जैसे ही मैं एंटर कर रहा था तो मेरा एक सीनियर था, वो वेलकम करने के लिए बाहर पीटी कर रहा था एंड ही वाज स्टड। और वो मतलब ही वाज लाइक कलर इन पीटी, तो ऊपर नीचे एकदम लटका हुआ था एंड हम तो देख के ही घबरा गए कि भाई क्या कर रहे हैं। वी हैव नेवर सीन दिस। पब्लिक स्कूल से था मैं, और मेरे साथ 2 लोग थे
वन वॉज फ्रॉम सैनिक स्कूल अमरावती एंड वन वॉज फ्रॉम सैनिक स्कूल नालंदा। तो जो जैसे ही मैं एंटर किया तो उनके जो भैया लोग हैं वो ले गए उन्हें स्कूल टाइप जो है, और मैं अकेला वहाँ पे खड़ा रह गया। और फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि जी सर। यूर फ्रॉम विच स्कूल, तो मैंने बताया सर ईपीएस। कोई आया नहीं मुझे क्लेम करने। और वहाँ पे फिर बोलते यूर ऑफिस किड, मैंने यस सर, तो सोचा स्टार्ट ट्रोली वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे ले गए अलग से, मेरे खाने का सामान कोई और ले गया, मेरा बैग खुल गया, मतलब काफ़ी कुछ था। और फिर अ, ये हम रात के टाइम पे एक्चुअली दिन के टाइम पे एंटर किए थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा प्रोसेस था। फिर उसके बाद नॉर्मल थोड़ा किट इशू वगैरह हुआ, और फिर वी एंटर्ड आ स्क्वाड्रन। तो जब हम रास्ते में थे तो सार्जेंट हमें डरा रहे थे कि यार स्क्वाड्रन में ना ऐसे होता है ऐसे होता है, मतलब फेक पूरा। हमने भी किया जब हम पंजे थे ना, इक्कियों को डराते थे कि यार तू स्क्वाड्रन में आएगा तो यस ऐसे ऐसे सर। होगा। और द मोमेंट आई एंटर, तो उसमें कन्वर्सेशन में माय सिस्टर वाज आस्क मी कि तेरे को गन इशू हो गई, राइफल। मैंने बोला सर राइफल तो मुझे कोई इशू नहीं हुई कोई। तो आपस में वो दोनों एक हाँ। दूसरे को देखने लग गए कि यार तेरे को तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसा नहीं है, राइफल इशू होता है, तू छुपा लिया है और अब तेरे पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली। मतलब मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आई वाज फ्रॉम फौजी हाँ। बैकग्राउंड। यस सर। फिर उसके बाद आई टोल्ड देम कि सर ऐसे राइफल इशू नहीं होती है, जब आप फायरिंग जाते हो तभी इशू होती है। बोलते अच्छा, यू आर सोसा ना। बोले यस सर। बोलते start rolling। फिर बोलते यू वांट टू टीच अस, और फिर वी हैड अ लिटिल इंटरेक्शन, आई वुड जस्ट टर्म इट लाइक दैट। और फिर उसके बाद they made me change into my muftis, and I was told to report to mess front. And from there my overstudy came, and overstudy मेरे को मेस ले गया। तो luckily I knew how to eat with cutlery, तो आई वॉज लकी। यस बट सर। काफ़ी लोग थे उनको इनिशियली थोड़ा लगता है कि यार कैसे कटलरी के साथ वगैरह, बट दे ऑल लर्न, क्योंकि वही गोल ही वो है मिलिट्री ट्रेनिंग का कि वेरियस बैकग्राउंड से आके यस सर। लोग आ रहे हैं, आप उनको सेम बनाओ, सेम ग्राउंड पे ले आओ। तो यस till the time we reach our third term, all of us are equal in mentally, physically, or psychology. तो uh, that is one of the most beautiful aspects of NDA. और यस just the first day was a little scary at night, because फोर्थ टर्म में ना नो मूवमेंट लग जाती है। तो नो मूवमेंट इज कि बाहर आवाजें आ रही हाँ, होंगी। बाहर पूरे स्क्वाड में आवाज आ रही होती है, हल्ला मच रहा होता है, चिल्ला रहे होते हैं सीनियर, दहाड़े। एंड यू कैंट यस कम सर। आउटसाइड, यू जस्ट हैव टू स्टे इन योर केबिन, क्योंकि बाहर आए तो बजा देंगे, तो चुपचाप अंदर बैठे रहो। और बाहर से मतलब ऐसी कभी कन्वर्सेशन सुनी नहीं थी, काफ़ी डरावनी लग रही थी मेरे को तो। बट फिर फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आई गेट यूज टू इट। और रात को व्हेन आई वेंट टू टेक अ बाथ, ऑलरेडी 3-4 guys वर हैड कम फ्रॉम पीटी एंड दे वर टेकिंग अ बाथ। सो थोड़ा सा इनिशियली तो वो था कि यार ये कैसे साथ में सारे नंगे नहा रहे, बट यू गेट यूज टू इट। तो आई गॉट यूज टू इट वेरी फास्ट। तो दे जस्ट टोल्ड मी टू स्ट्रिप ऑफ एंड एंजॉय। तो आई हाँ सर, स्ट्रिप ऑफ। उसके बाद तो हाँ, तो एक बार पहला वाला हो गया। उसके बाद तो बस। हाँ, तो दैट इज one of the beautiful, most beautiful memory me and my co-mates have, our first day. And that's that's it. So tell me yaar, you told me कि you were not able to clear your written the first time, and you just यस missed by a whisker. So ये यस बता कि viewers को कि कैसे you identified and isolated all your weak areas and worked upon them to clear your written in the second attempt. Basically tell me about your written preparation. यस सर। सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर, in in some parts of my mind I knew कि इस बार नहीं होगा, मतलब because I wasn't so well versed with the portion. And to any aspirant who is giving NDA, I'm only going to talk about NDA क्योंकि इतना तो मेरे को AFCAT and CDS का I'm not sure how the syllabus is, but I would say कि NDA के लिए you must attempt once, मतलब before giving a proper attempt, just so you know the how much time it's going to take you, because time is the most valuable factor Yes. NDA के लिए. India. That's what I feel. Yes, I agree. सर क्योंकि टाइम ही है वो. हाँ. हाँ सर, टाइम ही है. एंड प्लस सर हमारा तो पेपर वाज ओके. आई रिमेम्बर 2017 का, आई थिंक सर यू गेव योर पेपर इन 2017. हाँ.
हाँ सर, that paper was horrible. I solved it in my practice, and I was like यार मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ. सही में एक्चुअली That paper was very tough. किसी को Maths डिमोटिवेट paper. करना है ना तो 2017 का पेपर करवा दो. हाँ सर, उनको क्योंकि पेपर करा दो. 25 या 20% कुछ ऐसे चलेगी थी कट ऑफ. हाँ, and unluckily actually हाँ. that was the first paper I attempted हाँ तो for my पूरा practice. डिमोटिवेट हो So जाएगा I यार thought तो. the standard is so high. हाँ. हाँ तो इनफैक्ट आई रिमेम्बर हम हॉल में बैठे हुए थे एंड दो तीन ऐसे रिपीटर टाइप तगड़े आइटम आ रखे थे. एज में भी उनके बड़ी Yes बड़ी sir. एज लग रहे थे हमसे भैया भैया टाइप. तो दे वर सेइंग मैडम आपने गलत पेपर दिए थे, ये जेई का पेपर है एनडीए का पेपर नहीं. और Yes sir. बाहर आए तो सबके तोते उड़े हुए. एंड क्योंकि मैंने प्रैक्टिस काफ़ी की थी तो आई समहाउ रियलाइज कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा. तो बाहर गया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कि यार मैं तो सिर्फ 50 क्वेश्चन करके आया हूँ. और बट मेरा ये है मैंने 50 में गेस वर्क नहीं मारा. मुझे ऐसा लगता है 48 49 मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सही होंगे. मतलब बहुत रेयर होगा कि कोई गलत होगा. Yes. तो एक्यूरेसी वाज हाई. तो देवर साउंडिंग कि यार तू ऐसे उल्लू बना रहा है, तेरा क्लियर नहीं होगा. बट आई वॉज कॉन्फिडेंट. तो यार थोड़ा अपना और बता रहा. सॉरी आई कट यू इन बिटवीन. रिटन अरे प्रिपरेशन. no problem. हाँ. हाँ तो सर, the only weapon, the ब्रह्मास्त्र you have for written is introspection sir. आप Yes. जब खुद को देखोगे कि आपकी Yes. क्या क्या वीकनेसेस हैं, आप तभी कर पाओगे. एंड इट इज नॉट लाइक जेई. हाँ. जेई का प्रिपरेशन एंड एनडीए का मैथ्स इज टोटली डिफरेंट. Totally different. हमारे उससे भी आए थे सर, काफी बच्चे आए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या आईआईटी बैकग्राउंड से. वो थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया मैथ्स, बट जो प्रॉपर अगर आपको स्कोर करना है, सो यू आर इन मेरिट, उसके हिसाब से द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज प्रैक्टिस. तो मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट जब खत्म हुआ, आई रियलाइज कि मेरी स्पीड स्लो है. माई एक्यूरेसी इज फाइन बट मेरी स्पीड का इशू है. तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने पोर्शन भी रिवाइज नहीं किया था. आई जस्ट वेंट फॉर पेपर्स. मैं पेपर्स किया. फॉर 1 month आई यूज्ड टू टेक प्रिंट्स. नॉर्मल पेपर के प्रिंट्स लेता था मैं, उनको स्टेपल करके बैठ के टाइम लगाता था कि ये पेपर का टाइम लगाना है. एंड आई यूज्ड टू सॉल्व करके सॉल्व करके. एंड ऐसा है कि सर एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चंस कभी नहीं आते. हाँ. मैथ्स में रिपीटेड क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम. हाँ. एंड उसके लिए एक ट्रिक है. वो एक आर.एस. अग्रवाल करके किताब है सर, हाँ. मैथ्स की, एनडीए, I also आर.एस. used अग्रवाल. that. हाँ. हाँ, बेस्ट बुक सर. हाँ. इस बार के अगर आप पेपर देखोगे, अराउंड 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल. हाँ. नॉट मतलब क्लियर क्वेश्चन. ब्यूटीफुल बुक. वो किताब ब्यूटीफुल बुक हाँ. एंड दैट बुक इज गुड सर, वो ले लो. एंड देन फॉर जीएटी सर, मेरे को बहुत ऐसे डरा रहे थे जब मैं घुस रहा था ना सर. मेरे को डरा रहे थे, तुम्हें ये करंट अफेयर्स पता है, तेरे को ये वाला पता है, ये अभी ये हुआ. तो मैं तो थोड़ा डर गया था सर कि अभी ऐसे ऐसे पूछ लिया, ऐसे मेरे को तो कुछ नहीं आता करंट अफेयर. देखा सर उसमें एक क्वेश्चन आता करंट अफेयर का, और सब हिस्ट्री और उन सब के आए थे. सो इतना टेंशन नहीं लेना सर, पहले बात तो. आई रिमेम्बर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जब गया था, आई वाज सो स्केर्ड. मतलब बैठते ही ना, मतलब जैसे आई वाज लाइक यार ये तो ठीक है, करना तो है पेपर, बट फिर भी डर बहुत था. एंड समवेयर आई फील कि उस डर के कारण ही थोड़ा जो मिसहैप हुआ है वो हुआ था फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम आई वाज चिल सर. मैं तो ऐसे गया था कि अब जो है देखा जाएगा. यस. सो दैट इज इट सर. कूल माइंडेडनेस एंड प्रैक्टिस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. यस. अच्छा, फिर यू क्लियर्ड योर रिटन इन योर सेकंड अटेम्प्ट, ये मैथमेटिक्स का थोड़ा इम्प्रूव करके. और तो फिर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी? डिड यू टेक एनी कोचिंग और एनी गाइडेंस फ्रॉम एनी रिटायर्ड ऑफिसर? Or what all instruments you used in order to prepare for yourself SSB में? And what changes in personality can an aspirant bring if he is studying in 11th or 12th for his SSB? Yes sir, I would say that people say that generic जो advice होती है ना, किसी को कोई देता है, जैसे सर आप भी बोलते होगे, and lot of people would say, even I would say कि be yourself. It seems very generic. कि सबको लगता है कि यार ये तो सेम बात बता रहा है जो 100 लोग बोलते हैं. बट मतलब इफ यू पुट योर माइंड टू इट कि यार जेनेरिक क्यों है, काम करती है इसलिए जेनेरिक है ना, तभी तो जेनेरिक है. एंड दिस इज द सेम थिंग माय डैड टोल्ड मी. माय डैड is also serving in the Air Force. Okay. So he went to his SSB phase. So I asked him simply कि पापा मतलब what should I do? He get my written.
अब मेरे को टेल मी टिप्स फॉर एसएसबी, व्हाट शुड आई डू? ही सेड बी योरसेल्फ। Okay. एंड मैं तो देन आई वाज लाइक यार पापा आप बताते नहीं हो मेरे को, आपने कुछ किया नहीं है ऐसे टाइप। एंड देन फिर स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो करेक्ट है वो चीज। Okay. बिकॉज जो भी मैं और रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात करता था, आई वुड आस्क देम, वो भी कह रहे थे कि यार whatever your personality is right now, you should try and you know keep that personality and not let it get affected by other people's opinions और वो सब। because एक तो सर whatever I have seen in my batches and other people who have gone for SSB and have been rejected, Yes. उनका the problem was they over prepared। ठीक है सर, ओवर प्रिपरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज ओवर प्रिपरेशन ना आपके फिर वहां जाके ना आपके टाइम दिमाग में सब कुछ फेड टाइप हो जाता है कि हाँ मेरे को अब ये बोलना है, फिर मेरे को ये करना है। वो फिर नेचुरली नहीं आता सर। एंड नेचुरली नहीं आया तो फिर देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज वो जज तो आपका नेचर को कर रहा है ना, आपके एक्चुअल नेचर को कि आप कैसे हो। तो then I went to a few retired officers, as you said, sir. I met them, I talked to them, and I took their advice. They told me कि you should practice for the psychology test because again it's a speed game। ठीक है, इतने सारे भर के SRT होते हैं, इतने सारे WT होते हैं, it's all time, and if you have a good speed you'll be confident। तो what I used to do is, sir, I used to watch YouTube videos। ये AFPA का हो गया, and there are lot many YouTube videos who post timed वाले psychology tests, जैसे WAT, TAT, उन सब के टेस्ट होते हैं। एंड मैं उनको फिर एक प्लेन शीट में स्टेपल करके लिखता था पूरा। एंड देन आई यूज्ड टू टेक दोस पेपर्स टू दोस रिटायर्ड ऑफिसर्स और other people who were guiding me, and they would just skim through it and say कि हाँ यार यहाँ थोड़ा कष्ट है, यहाँ थोड़ा कष्ट है, ऐसे टाइप। एंड ऑनलाइन भी काफी सारे लोग थे सर, उनको भी मैं फोटोज खींच के भेजता था कि सर जरा चेक कर लो हाउ इज माय TAT, हाउ इज माय WAT एंड ऑल। सो साइकोलॉजी टेस्ट के लिए वो किया, एंड GT के लिए आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस सर, बिकॉज काफी सारे स्ट्रक्चर्स तो वीडियो में दिख गए थे मेरे को कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है, and I used to read a lot। I took 2-3 books, SSB का books होता है, I used to read through them and understand कि क्या process है, कैसे होता है। But I would say this sir कि when I went for my SSB, 2-3 days before I went for my SSB, I just stopped। मैं कुछ नहीं किया, 2 दिन मैं बस खाया पिया सोया, रेस्ट किया एकदम। एंड वहां जाके ना I was in that mode कि अब तो ये ऑटोमेटिक टाइप है। ये टेस्ट आया ये कर दिया चलो, ये गए GT आया ये कर दिया चलो नेक्स्ट। यस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा काम डाउन बिफोर गोइंग फॉर SSB। ओके, अच्छा जैसे तूने बताया कि तू किक बॉक्सिंग करता था, तो हाउ डिड यू मतलब हु इंट्रोड्यूस टू यू टू किक बॉक्सिंग? क्योंकि इंडिया में इतना मतलब ग्लोरिफाइड स्पोर्ट नहीं है ये। है सर, नहीं सर, एग्जैक्टली। तो when my father was posted, एक सेकंड, तेरा रूटीन क्या होता है? जैसे एक नॉर्मल किक बॉक्सर जो एविड किक बॉक्सर है, तो व्हाट ऑल फिटनेस रिजीम एंड डाइट चेंजेस ही हैज टू ब्रिंग, एंड जो मेंटालिटी है, क्योंकि बाउट्स का थोड़ा अलग मेंटालिटी होता है, बिकॉज यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, बट फाइनल डे पे जब एक पंच लगता है आंखें घूमती हैं, तो वो जो मेंटालिटी है वो कैसे है? हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट? यस सर, सो इन माय 10th grade सर, I love sports sir from the beginning। मेरे को if I don't have movement in my day, if I don't play in my day, I cannot sleep। मैं रात को करवटें ही बदलता रहूंगा, मेरे को नींद नहीं आती if I don't play। And when I came to मैसूर सर, तो यहाँ there weren't a lot of sports, मतलब I couldn't see इतना ज़्यादा activity, and बच्चे भी आसपास थोड़े कम थे। So I decided कि मैं एक दिन I took my cycle and I went for a round। मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, let me see what's there in the city। And there I saw a board, martial arts का board ना, and I had and the same day coincidentally I saw a movie called Undisputed। Okay, Scott Adkins एक एक्टर है सर। It's a very old movie। It's about martial arts। Okay। And वो देख के I got excited कि यार अब तो बॉक्सर बनना है, एकदम ब्रूस ली बन जाऊंगा। I went सर, नाम दे दिया, and I went, and पहले दिन ही नाक तोड़वा के वापस आ गया। That is another story। And
आई केम, वो नाक से खून निकल रहा है, एंड पापा से फिर और मार खाई कि वहां गया था। तो उसी फिर देन फाइनली उनको कन्विंस किया कि मतलब आई एम नॉट गोइंग इन द रॉन्ग पाथ, आई एम गोइंग फॉर फिटनेस। हाँ तो देन आई स्टार्टेड सर, एंड उसके बाद आई यूज्ड टू लव इट सर वहां जाके ना। एंड मेरा वही एडवाइस है, इवन इफ यू पुट एनी स्पोर्ट, जस्ट पिक वन स्पोर्ट, बिकॉज स्पोर्ट विल लीड टू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन सर। अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिकली, देयर इज नो नीड टू पुश इट। यस एंड व्हेन आई स्टार्टेड किक बॉक्सिंग, तो वहां तो सर पिटाई होती थी सर अच्छे से। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंडीशनिंग सर। सो व्हाट दे डू इज दे टेक अराउंड 1 or 2 kg बैट, स्टील बैट, हेवी वाला, ओके एंड ना उससे मारते हैं बॉडी पे, एट एब्स योर चेस्ट, ओके ओके abs, chest, shoulders, everywhere, ओके everywhere, ओके so that in the middle of the fight you don't हाँ get, कंडीशन you don't get injured, हाँ and you're used to that यस यस kind of thing ना। यस उसमें तो काफी चोटें लगी हैं। एंड देन एक लिस्ट निकली कि यू विल बी दैट यू कैन अप्लाई फॉर नेशनल्स। ओके एंड एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मिक्स मार्शल आर्ट्स। मिक्स एमएमए मार्शल आर्ट्स की वो है, ओके एमएमए के लिए। सो आई वाजंट गोइंग फॉर प्योर किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो उसमें ब्राजीलियन जिजित्सु हो गया, यस टाइकोंडो हो गया, वो सब सीख रहा था, ओके बॉक्सिंग कर रहा था। ओके एंड देन फाइनली वो लिस्ट आया, एंड उसमें मेरा नाम था, मेरे कोच ने ऑलरेडी दे दिया था। ओके देन आई सॉ दैट लिस्ट, ने कहा कि यू जस्ट गो फॉर इट, एंड देखते हैं वहां जो होगा सिलेक्शंस में, लेट्स सी। ओके तो आफ्टर आई थिंक आई हैड, एंड उस समय मेरा रूटीन वाज वेरी वेरी टफ। आई मीन मतलब नॉट एकेडमी लेवल टफ, बट इट वाज वेरी वेरी any वियर्ड काइंड ऑफ sportsman has रूटीन। tough routine यार you don't have to explain it नहीं नहीं, नॉट नॉट स्पोर्ट्स वाइज सर, वो ना okay मेरे स्कूल के कारण थोड़ा अच्छा टफ हो गया था, academic life बिकॉज okay नहीं नहीं, हाँ एकेडमिक हाँ लाइफ, नो आई वाज गोइंग टू डीपीएस बिकॉज इट हैड अ कनेक्शन विद एलन सर कोचिंग इंस्टीट्यूट। okay okay जो you were हाँ, in that JE सो rut आई वाज, नो सर, आई वेंट देयर आल्सो जस्ट टू प्रिपेयर माय मैथ्स फॉर एनडीए, क्योंकि मेरे को पता था जेई लेवल की मैथ आती है। तो oh god वहां ज्वाइन किया था, and it was very weird sir. It was like half day I would spend in my school, the other half day I would spend in coaching, and उसमें से 1-2 घंटा बच गया, वो जाके वहां जाके लात घूसे खाता था। तो it was very very hectic, and amazing I had to train also, I had to take proper diet also, जो मेरे को पढ़ाई में भी I can put my mind, वहां 6-6 घंटे 5-5 घंटे, एंड फिर वहां जाके फाइट भी करना है। एंड तो थोड़ा टफ था वो टाइम, बट उसके बाद फिर आई वेंट फॉर माय सिलेक्शंस हो गया, क्लियर हो गया, एंड देन आई वेंट टू रोहतक सर फॉर माय नेशनल्स, सीनियर नेशनल्स। great एंड रोहतक में आई हैड माय बाउट्स, सो आई वन मोस्ट ऑफ देम सर, बट व्हेन द क्वार्टर फाइनल्स हैपेंड, नो सॉरी सेमीफाइनल्स में, देयर द सिचुएशन वाजंट वेरी गुड सर जहां हम रह रहे थे। एंड तो मेरे को सर टाइफाइड हो गया था, एंड आई डिडंट रियलाइज। तो आई थॉट कि मेरे को तो बस मतलब आई एम फीलिंग बिट, आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक या कुछ, हाँ एंड आई वेंट फॉर माय बाउट। yes एंड उसमें सर सो आई गॉट वहां तो प्रिटी बीटन अप उसमें, एंड देन दैट गाय ब्रोक माय रिब सर, राइट रिब, okay एंड दैट टाइम, हाँ, एंड देन माय कोच सेड कि यू विल नॉट कंटिन्यू। आई हैड अनदर मैच फॉर सिल्वर, silver बट देन माय कोच सेड कि यू यार इसके बाद यू विल गेट परमानेंटली डैमेज्ड। तो फिर देन छोड़ दिया सर उसके बाद। एंड उसके बाद आई केम बैक, एंड आई वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर 1 month। उसके बाद आई हैड सिवियर टाइफाइड, बट इट वाज वर्थ इट सर। actually I also I've experienced all this separately, not at the same time. I've had my ribs broken, Yes sir. because of which I was boarded out, and I've also got typhoid, and I've also got injury in a bout. So I can understand the whole situation, and it must be All very this, tough yes, because typhoid drains you, rib pains you, yes sir. and the bout, it tires you inside out. The whole preparation Sir, that process, and ribs wala thing happened during boxing sir? नहीं यार I got hurt in hockey while playing hockey ना, Oh my तो god. I Yes broke sir. 2 ribs on my backside, and got some compression fracture on my spine. So, but that's fine, yeah. We can't fuss about it.
I was doing my job for my Yes. squadron. I did my best. So That is what it is, sir. Yeah. actually, at the end of the day, that's what matters. It doesn't matter that you Yes. have got commissioned or you have got. Well, it matters I've heard of people who have died for their squad, sir. मतलब during training, exactly दौड़ने के लिए, exactly running हमारे में. एक सीनियर है. He's from the 86th course. His name is DCC Yes, sir. Deepak Mudgal. तो Yes. he was one of those cadets and he was my father's junior and उनकी फोटो हमारे स्क्वाड्रन में लगी हुई है along with Major Mohit Sharma and Colonel Yes, sir. N.J. Nair. Yeah. And that much sanctity is there for him कि डीसी दीपक मुदगल की इम्पोर्टेंस एक इंजन इंडिया स्क्वाड्रन के बंदे के लिए इतनी ज़्यादा थी कि हर क्रॉस कंट्री से पहले ये बोला जाता था कि भाई डीसीसी दीपक मुदगल डाइड फॉर हिज स्क्वाड्रन. Yes. He was having